بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے آن لائن اسکیمز کی، یا جس کو آپ کہیں آن لائن فراڈز کی۔ ہم میں سے تقریباً سب کے ساتھ ہو چکا ہوگا، یا یوں کہیں کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ آن لائن اسکیمز، آن لائن فراڈز، یا ان کی پرسنل ڈیٹا، یا ان کے اے ٹی ایم یا او ٹی پی یا ان کے کریڈٹ کارڈ کے نمبرز جو ہیں وہ ہیک ہو چکے ہوں گے یا انلیگلی یوز ہو چکے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے ایڈوانس پیمنٹ پہلے کر دی ہوگی کسی بھی چیز آن لائن منگوانے کی، تو یا تو ہمیں وہ چیز موصول نہیں ہوئی ہوگی، یا یوں کہیں کہ وہ اس کوالٹی کی چیز نہیں آئی ہوگی جس کا ہم نے آرڈر دیا تھا یا جس کو ہم نے پسند کیا ہو۔ اسی طرح ہم نے اپنی پرسنل ڈیٹا، اپنی پرسنل بینک کی ڈیٹا جو ہے نا، وہ آن لائن اسکیمر سے شیئر کر لی ہوگی، جس کے بعد جو ہے نا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہوگا اور ہماری بینک سے جو ہے نا ٹرانزیکشن ہو گئی ہوں گی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہ ہمارے ہیک ہو جاتے ہیں، یا ہماری جو موبائل کی پرسنل ڈیٹا ہے یا جو کمپیوٹر کی پرسنل ڈیٹا ہے وہ لیک ہو جاتی ہے، یا اس پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اسکیمرز کے کتنی قسمیں ہیں، اور وہ لوگوں کو کس طرح جھانسے میں لاتے ہیں، لوگ ان کے جھانسے میں کیوں آتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے، اسکیمر سے بچنے کے لیے لوگوں کو یا ہمیں یا آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ کس حد تک جو ہے نا ہم محفوظ رہ سکیں۔ چلتے چلتے میں آپ کو کچھ اعداد و شمار ان اسکیمز کے بتاتا چلوں۔ پاکستان کی اعداد و شمار کے تحت 2024 میں 13,722 آن لائن اسکیمز کے کیسز رپورٹ ہوئے، جس میں سے باضابطہ رجسٹر کیسز کی تعداد 832 تھی۔ 2024 میں جو گرفتاریاں ہوئیں وہ 1,212 کی ہوئیں۔ یہ ایف آئی اے کے ادارے کی تحت جو ہے نا انفارمیشن دی گئی۔ 2024 میں ویزا سروے کے مطابق 55% صارفین جو ہیں وہ فراڈ یا جعلی شاپنگ کا شکار ہوئے، اور سائبر کرائم کی رپورٹ کے مطابق 2025 میں 35% جو ہے زیادہ رہا 2024 کے کمپیئر فراڈ کا پرسنٹیج۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے 2025 میں کوئی اعداد و شمار تو نہیں دیے گئے، لیکن یہ بتایا گیا کہ 35% جو ہیں آن لائن اسکیمز زیادہ رہے بنسبت 2024 کے۔ لیکن لاہور کمرشل کمپنیز انڈیکس کے تحت پاکستان میں 2025 میں 1,42,272 آن لائن اسکیم کیس فائل ہوئے، اور تقریباً $9 بلین سے بھی زیادہ کے فائنینشیل اسکیمز ریکارڈ ہوئے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات یا یہ اعداد و شمار گلوبل اسٹیٹ آف اسکیمز رپورٹ میں بھی بتائی گئی، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اور اسٹیٹ بینک نے یہ بھی تصدیق کی کہ آن لائن اسکیمز کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں سے زیادہ تر اسکیمز تب ہوئے جب وکٹم نے اپنی سینسیٹیو ڈیٹا خود جو ہے نا آن لائن شیئر کی۔ دوستو، اسکیمرز عام طور پر اپنے اسکیمز جعلی فیس بک پیجز، انسٹاگرام شاپس، فیک کالز اور میسیجز، اور فیک مارکیٹ پلیسز، آن لائن مارکیٹ پلیسز کے تحت کرتے ہیں۔
दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये स्कैम्स कौन कौन से होते हैं और स्कैमर कैसे यूज़र को झांसा दे सकते हैं। जाली ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं जो देखने में असल लगते हैं, लेकिन वो लोगों को लूटने के लिए बनाए गए होते हैं, जो पैसे लेकर या तो सामान नहीं भेजते या गैर मयारी सामान भेज देंगे। जाली रिस्की वेबसाइट जो यूज़र का डेटा यानी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड्स चुराने के लिए बनाई गई होती हैं। इन्वेस्टमेंट या क्रिप्टो के तहत स्कैम्स करते हैं, यानी 70 से लेकर 80% तक के प्रॉफिट का झांसा देते हैं। ये स्कैमर्स जाली लोन एप्लीकेशंस के तहत भी जो है ना यूज़र का डेटा चुराती हैं और फिर यूज़र को बाद में ब्लैकमेल करती हैं। स्पाईवेयर या मैलवेयर एप्लीकेशन, फेक एप्लीकेशन जो चुपके से यूज़र का डेटा चुराती हैं और उन पर नज़र रखती हैं। रोमांस ऑब्लिक डेटिंग स्कैम्स, ये फेक प्रोफाइल एप्लीकेशंस होती हैं जो यूज़र को ट्रैप करने और उसे ब्लैकमेल या इवन कहीं बुलाकर अगवा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जाली बैंक मैसेजेस या बैंक कॉल करके यूज़र से उसकी पर्सनल डेटा ले लेते हैं। हाँ, ये स्कैमर जॉब ऑफ़र या ऑनलाइन कमाई के झांसे में लाकर भी हमें लूट सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ये स्कैमर्स लोगों को किस तरह झांसे में लाते हैं। लोगों के इमोशंस या जज्बात से खेलकर, जैसा कि कहेंगे कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है या आपको कहेंगे कि आपने इतना अमाउंट का प्राइज़ जीता है। लोगों का एतमाद जीतकर ये फिर उनको फंसाते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। ये सब जाली सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ये करते हैं। जाली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के तहत ये लोगों को झांसा देते हैं, यानी 100% रिस्क फ्री डबल अर्निंग्स। प्रेशर बिल्ड करके, जैसे लोगों को ज़्यादा सोचना ना पड़े और आपसे कहेंगे कि आखिरी चांस है, आज का दिन है, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, वगैरह वगैरह, और गैर मामूली सस्ते रेट देकर आपको ये अपने झांसे में फंसाते हैं। दोस्तों, हम क्यों जो है ना स्कैमर्स के झांसे में आ जाते हैं, उसके कुछ रीज़न हैं। वो ये कि जल्दी फैसला करने को वो कहते हैं, कम कीमत का लालच देते हैं, लोगों को एतमाद करने की आदत होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का या ऑनलाइन परचेस करने का तजुर्बा नहीं होता, जाली वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लगती हैं और अट्रैक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन डेवलपर की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर डेवलपर की पूरी डिटेल देख सकते हैं, उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का नाम, ईमेल वगैरह वगैरह, और देख सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन मुकम्मल और सही दी गई है या नहीं। आप डेवलपर की सोशल मीडिया प्रेजेंस भी देख सकते हैं। डेवलपर के रिव्यूज़ और रेटिंग्स, उसकी परचेज़ या प्राइवेसी पॉलिसी भी देख सकते हैं, जिससे भी आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। डेवलपर या वेबसाइट के बारे में आप ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हैं कि कहीं वो वेबसाइट या वो डेवलपर किसी इल्लीगल एक्टिविटीज़ में तो मुलव्वस नहीं रहा। आप ये भी देखेंगे कि कहीं डेवलपर कोई गैर ज़रूरी परमिशंस तो आपसे नहीं मांग रहा, यानी लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स, स्टोरेज एक्सेस वगैरह वगैरह। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि हर एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूनिक डिजिटल सिग्नेचर होता है, जो आप
APP ब्रेन, वायरस टोटल, APK मिरर में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वेबसाइट सिक्योर किस तरह आप देख सकते हैं। अगर वेबसाइट HTTPS है और उस पर लॉक का साइन भी आ रहा है तो यूँ समझें कि वो वेबसाइट सिक्योर है, जिसकी सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट जो है वो सर्च इंजन दे रहा है। और अगर HTTP सिर्फ HTTP है और जिस पर लॉक का साइन भी नहीं है तो वो वेबसाइट ज़रा रिस्की है, क्योंकि उसका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी नहीं होता और वो डेटा की इनक्रिप्शन भी नहीं करती। मतलब जैसे ही आप जैसा भी डेटा आप डालते हैं वो एज इट इज़ स्कैमर्स तक पहुंचा देती है। ओरिजिनल एप्लीकेशन का पैकेज नेम हमेशा यूनिक होता है, जो आप प्ले स्टोर में URL देखकर भी पैकेज नेम वेरीफाई कर सकते हैं। आप PTA की ऑफिशियल वेबसाइट, FIA की अलर्ट्स एंड कंप्लेंट, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर भी डेवलपर या वेबसाइट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये कंपैरिजन भी देख सकते हैं। इन चीज़ों को जानकर भी आपको कुछ ना कुछ वेबसाइट या डेवलपर का अंदाज़ा हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ इदारे जो ऑनलाइन स्कैम्स से निपटने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। NCCIA, पहले ये FIA साइबर क्राइम विंग था, अब NCCIA। ये इदारा ऑनलाइन हरासानी, माली फ्रॉड, डेटा चोरी, बैंकिंग और ब्लैकमेलिंग की तहकीकात, पाकिस्तान डिजिटल स्पेस को महफूज रखने और पीका 2016 के तहत मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मददगार साबित होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये इदारा ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से बचाने के लिए काम करता है। कवानीन बनाने, मशकूक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की निगरानी करने, बाज़ सूरतों में मुतासरा अफराद को रकम वापसी करने में मदद करता है, आवाम में आगाही फैलाता है, गैर कानूनी वेबसाइट को ब्लॉक करता है। FIA NCCIA के साथ मिलकर काम करता है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इदारा पाकिस्तान कॉरपोरेट सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स की निगरानी में मददगार साबित होता है। कंपनियों की रजिस्ट्रेशन और कंपनियों को कानूनी शनाख्त फराहम करता है, स्टॉक मार्केट्स की निगरानी करता है और सरमायाकारों के हुकूक की हिफाजत करता है। गैर कानूनी सरमायाकारी स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई करता है। पीका तरमीमी एक्ट 2025, ये एक नया तरमीमी कानून है जो पाकिस्तान में ऑनलाइन जराइम, जाली खबरों और गुमराह कुन मालूमात को रोकने के लिए बनाया गया है। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी SMIPA का भी क़याम इस एक्ट के तहत हुआ है। दोस्तों, आखिर में हम जानेंगे कि किस तरह, पूरी तरह नहीं तो किसी हद तक हम इन स्कैमर्स से बच सकते हैं अगर हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैर ज़रूरी शेयर ना करें। हमेशा वेबसाइट या एप्लीकेशन या डेवलपर को वेरीफाई करें। कोशिश करें कि एडवांस पेमेंट से अवॉइड करें। अननोन लिंक्स को ना खोलें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड इस्तेमाल करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें। अपने फ़ोन को हमेशा अपडेट करते रहें। कभी भी SMS, फेसबुक या व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी गई APK फाइलें इंस्टॉल ना करें। लोनिंग एप्लीकेशंस को SECP के जारी करदा लिस्ट से तस्दीक करें। जब तक 100% श्योर ना हो, अपना ATM, CNIC, CVV कार्ड नंबर हरगिज़ दर्ज ना करें। स्टेट बैंक के एडवाइजरी को हमेशा चेक करें। कभी भी हद से ज़्यादा सस्ती चीज़ पर एतबार ना करें। जाली जॉब्स और अर्निंग एप्लीकेशन से बचें।
अपने इदारों पर भरोसा करें और अगर कोई ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशन आपकी नज़र से गुजरे तो उसको रिपोर्ट करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।